Hello students, welcome to Skholar IAS, your one-stop solution to IAS preparation. As usual, welcome all of you from my side for our important session in which we weekly discuss some very important multiple choice questions. The idea behind this series is to enable you to be more confident in solving multiple choice questions, right? So as we have been doing in almost 10 sessions that we had on similar tune in the past, you can go have a look at all those sessions. Students, we are focusing more on discussing the solution together, or rather I would say discussing the question, the options, eliminating one of them, and then arriving at a solution together. It is not a one-way communication. So I encourage all of you to participate in our discussion. कभी कभी क्या होता है that you solve MCQs with an objective to just increase the number of MCQs that you have done or how many you have got right or wrong. I would rather suggest that try to also focus on what went wrong, what kind of guesswork you are doing, and how many of your guesswork is leading to a correct solution, and why are your guessworks not working at other times. This reflection is very important. This is for this particular purpose that we engage with the test series, right? Because content we have anyways read from the textbooks and other materials. But when we solve MCQs, the idea should be to learn more about yourself and less about the content. You should learn what kind of test attempter you are, how you are going to attempt test, prepare your strategy, test strategy in the test series itself, right? So it is with this perspective that you should engage with the test series. So उसी approach को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पर भी different questions से engage करते हैं. So let's start our discussion for today. First question is a mix of map work and physical geography of the world. The question is, there are no volcanoes in which of the following countries? Right? There are no volcanoes in which of the following countries, right? So options are listed here: Indonesia, New Zealand, Japan, and Mexico, right? And there are different possibilities: 2 and 4, 1 and 3, one only, none of the above. So if somebody is not getting a sense on what concept this question would have been framed, then it is almost very tough, very almost impossible to solve this question, because it cannot be expected from any candidate to remember which country has which disaster. At max we can have a broad sense, right? But it is not possible कि किस country में कौन सा disaster होता ही नहीं है, क्योंकि एक तो हो ही सकता है, right? So इसीलिए हमें जानना होगा, हमें ये anticipate करना होगा that what is the logic behind asking this question. Is it completely illogical or fact-based question, or there is something that UPSC would have expected us to know, right? आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक मैप देखते हैं, ठीक है? ये वर्ल्ड का पैसिफिक रीजन का मैप है. कहने का मतलब है ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, और ये जापान वगैरह है, और साउथ ईस्ट एशिया का बाउंड्रीज हैं, यह पैसिफिक ओशन है. आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पट्टी सी है, दिस ब्राउनिश कलर, राइट? अ रिंग इज देयर, हाफ रिंग, ओपन रिंग, which is open here in this portion. So this is called ring of fire. ये जो ऐसे करके ये एरिया बना, इसे हम कहते हैं, ये जो एरिया बना इसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, राइट? As is apparent from the name itself, it is ring, which means its shape is of a ring kind, and it is a ring of fire. It means there is something connected to a lot of fire, a lot of heat. Now you look at the wording of the question. Which of the countries have no volcanoes? Now what happens in a volcanic eruption? A lot of lava, gases, and molten metal
come out of the earth surface, right? So इसी वजह से इस जो पूरे के पूरे ट्रांस पैसिफिक रीजन का नाम है वो रिंग ऑफ फायर है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर है, कहने का मतलब ये जो इसके आसपास सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पर अक्सर वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, राइट? इसी जो पूरा रिंग ऑफ फायर है, इसमें ही दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव और पैसिव वोल्केनोज हैं। साथ ही साथ दिस इज द रीजन जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है, राइट? मोर देन दैट, सुनामी प्रोन भी यही एरिया सबसे ज्यादा है, बिकॉज देयर इज नो disjunction between tsunami and earthquake. When a very severe earthquake takes place in the sea surface, then it leads to sort of tsunami. So इस वजह से वोल्केनो, सुनामी और अर्थक्वेक सब इस रीजन में बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको ये पता हो कि रिंग ऑफ फायर का एक कॉन्सेप्ट है, और आप फिर देखेंगे तो इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, जापान और मेक्सिको, चारों ऐसी कंट्रीज हैं। मेक्सिको कहीं यहाँ कहीं होगा, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। जापान आपका यहाँ कहीं पे होगा, उसके बाद न्यूजीलैंड आपका यहाँ कहीं पे होगा, और इंडोनेशिया आपका यहाँ कहीं पे होगा। सो आप देखेंगे कि ये चारों कंट्रीज जो ऑप्शन में है, दे मस्ट बी लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर। Two things are important, students, here. One, you should know that there is one thing called ring of fire. You should know its location. You should also know roughly कौन सी कंट्री कहां पर है। अब किसी को यही नहीं मालूम कि इंडोनेशिया कहां पर है, तो बहुत मुश्किल है। तो दो तीन असेंबल्ड पार्ट करके आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू विल बी क्यूरियस टू नो कि यहाँ पर क्यों हो रहा है ज्यादा वोल्केनो और अर्थक्वेक और सुनामी यहाँ पर क्यों है। तो आप अगर देखेंगे इनिशियल चैप्टर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यू विल गेट टू नो दैट जो अर्थ है उसके जो कॉम्पोजिशन को डिफरेंट प्लेट्स में बांटा गया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा। ये थ्योरी आई, उसने चीजों को समझने में मदद की। ये वोल्केनिक इरप्शन हजारों सालों से होते रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास या जियोलॉजिस्ट के पास बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था। सो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी कि ये जो पैसिफिक प्लेट इस रीजन में इस टाइप का है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नाज़का प्लेट है, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलेशियन प्लेट है, देन हियर इज अमेरिकन प्लेट। तो ये जो सारे जो प्लेट्स होते हैं ये स्थिर नहीं है, दीज प्लेट्स आर फ्रैगमेंटेड, एंड जहां उनकी बाउंड्री टच होती है वहां पर दे रब अगेंस्ट ईच अदर, दे समटाइम्स सबसाइड अंडर ईच अदर। कोई नीचे चला जाता है, कोई ऊपर आ जाता है, कभी वो सेपरेट होते हैं, कभी वो कंप्रेस करते हैं। सो बाउंड्री सरफेस पर जो प्लेट्स के है, वहां पर जब फ्रिक्शन होता है, उस प्रोसेस में ये सारे वोल्केनिक एरप्शंस और अर्थक्वेक होते हैं। तो इस रीजन में ये सारा जो प्लेट का जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है और इंगेजमेंट है बिटवीन प्लेट्स, वो बहुत ज्यादा होता है। सो ये रीजन है स्टूडेंट्स की इस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा गया है। बाद में एक्सप्लेनेशन आया, ऑब्जर्वेशन हमेशा से हमारे पास था कि इस एरिया में बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। So all these countries are covered in the ring of fire, which stretches from the southern tip of the South America up along the coast of North America across the Bering Strait. अब Bering Strait exact कहाँ है आप इसको देख लें, down through Japan and into the New Zealand, right? The southern portion is more complex with a number of smaller tectonic plates in collision with the Pacific plate from the Mariana Island, फिलीपाइंस, बोगनविला एंड टोंगा। जो हमने सदर पोर्शन में, आप यहाँ देखिए, ये जो रीजन है इसकी बात हो रही है। तो आपने समझा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि हमें पहले तो ये चीज हिट करनी चाहिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के कि जहां भी पूछा जा रहा है वोल्केनो से बात, तो कहीं ना कहीं रिंग ऑफ फायर का जिक्र होना चाहिए। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, उसका आउटलाइन कैसा है, किन एरिया से टच करते हुए वो जाता है, और जो ऑप्शन में आपको कंट्रीज दिए गए हैं उनका लोकेशन कहाँ पर है। फर्ज कर लीजिए इसी में एक कंट्री डाल दी जाती पाकिस्तान, तो आपके लिए एलिमिनेट करना इजी हो जाता है कि नहीं, रिंग ऑफ फायर के आसपास पाकिस्तान तो नहीं है, तो एलिमिनेबल है। और किसी वजह से वहां वोल्केनो होता है, वो और बात है,
लेकिन अगर एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपके पास ऐसी चुनौती आती है तो आप आराम से इस तरह के कॉन्सेप्ट से लिंक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने उठाया है कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी से। सो क्वेश्चन है, which of the following principles are not followed in Indian Federation? राइट, कहीं और भी हमने इसका शायद जिक्र किया है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, राइट, आप देखे होंगे आज ही न्यूज में ऑलमोस्ट चल रहा है दैट PM went to West Bengal, right, to get an assessment of what kind of disturbances have been created due to cyclone Yas, and it has severely affected Bengal and Odisha. Hence, there was a meeting between Chief Minister of Bengal, Governor was there, Prime Minister was there, and then Mamata Banerjee arrived a bit late. Explanations can be varied. But then there was a criticism of Mamata Banerjee on the grounds that it is against federal principles. It is against the idea of cooperative federalism. Both union and states have to work in coordination to ensure that the benefit of people is happening. So ये फेडरेशन जो टर्म है या फेडरलिज्म जो है ये बार बार हमारे डिस्कोर्स में आता है, राइट। साथ में एक टर्म एसोसिएटेड है इंडियन फेडरेशन, which should logically appeal to a mind that there must be a general political system called federalism, and then there must be an Indian variant of that system called Indian model of federalism. Now we have to figure out among these four principles, which are of course in general concepts of federalism, are not found in Indian federalism, right? So you should have a clear-cut conceptual background knowledge of what kind of federal model does India have, what kind of exceptions are there, from where we have borrowed this Indian model of federalism, and why we have made certain changes. इतना जानकारी आपके पास होना चाहिए, किसी भी कैंडिडेट के पास होना चाहिए, जो आमतौर पर होता भी है, right? So first statement is bifurcation of the judiciary between the federal and the state government. यानी केंद्र सरकार के लेवल पे अलग जुडिशरी होगी, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर अलग जुडिशरी होगी, ये एक स्टेटमेंट है। सेकेंड, इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। तो फेडरल लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट, विच मीन लोकसभा एंड राज्यसभा। अपर हाउस का मतलब हो गया राज्यसभा। सो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, यानी राज्यसभा में हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। थर्ड, the union cannot be destroyed by any state seceding from the union at its will. That is, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, कोई एक स्टेट चाहे अपनी मर्जी से तो उससे अलग होकर यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। फोर्थ इज फेडरल गवर्नमेंट कैन redraw the map of the Indian Union by forming new states, right? That अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो एक नया स्टेट क्रिएट कर सकता है, किसी स्टेट की बाउंड्री को रीड्रॉ करके, जैसे तेलंगाना क्रिएट हो गया, झारखंड क्रिएट हो गया। नाउ यू हैव टू सजेस्ट इसमें कौन सही है कौन गलत है। ये सिंपल फैक्ट्स के बेसिस पर भी आप कर सकते हैं, थोड़ा फेडरलिज्म का नॉलेज हो तो और अच्छी बात है। सो पहला अगर हम देखें तो बाइफर्केशन ऑफ जुडिशरी बिटवीन फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सम स्टूडेंट मे डू इट इनकरेक्टली बिकॉज दे मे से that at the union level there is Supreme Court of India, and at state level we have different high courts like High Court of Calcutta, Patna High Court, or Madras High Court, Bombay High Court. Different high courts have been in news. Allahabad High Court, due to COVID response of the government, there have been news around high courts. But they should not confuse it with the kind of judicial setup that is there in the United States of America. In case of India, students, there are various layers of judiciary for sure. We have Supreme Court, high courts, then we have district courts at the lower level, we have lok adalats, we have tribunals. But we should never forget that this is an integrated judicial system. Integrated से क्या मतलब है कि एक लाइन ऑफ कमांड में वो फंक्शन करते हैं। हाई कोर्ट्स वर्क अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देश का कोई भी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल कमांड एंड कंट्रोल सुपरविजन में काम करता है। इट कैन नॉट वर्क इन इंडिपेंडेंट मैनर। जो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है
वो जुडिशरी इन टोटल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आपस में जुडिशरी के लेयर्स इंडिपेंडेंट नहीं है। इन केस ऑफ अमेरिका इट इज डिफरेंट, यानी न्यूयॉर्क सिटी का जो भी इस स्टेट में वो पड़े, लेट्स से मैसेच्यूसेट्स का कोई स्टेट लेवल का कोर्ट है, तो वो फेडरल कोर्ट से इंडिपेंडेंट होता है। इसके लॉज अलग होते हैं, इनका काम करने का तरीका भी अलग हो सकता है, राइट। लेकिन इंडिया के केस में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ऊपर से नीचे तक। सो पहला ऑप्शन गलत हो गया, राइट। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। ये भी आपको कॉमन सेंस से पता है कि गोवा एंड उत्तर प्रदेश डोंट सेंड इक्वल नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, सो इट मींस this is also not correct. So 1 and 2 are gone. If you look at these options, these 3 are anyways gone. So even if you don't analyze these 2 options, you can easily say the answer is D. So this is one way of solving the questions, saving your time. जब आप किसी 2 ऑप्शन के बारे में super confident, then you can easily eliminate 3 options and you are at the solution. Still, we can engage with the statements itself. Third is the union cannot be destroyed by any state seceding from the union at its will. We also know this fact that suppose today Jammu Kashmir wants that it wants an independent state of its own, independent country of its own. It cannot do, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता था तो वो लड़ झगड़ के कर लिए होते। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है। Hence, there is a famous dictum about Indian federalism that India is a इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी हमारा ओवरऑल यूनियन जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता पॉलिटिकली। वो युद्ध के बाद ही कोई हमसे अलग कर दे, हमें हरा दे, हमारे टेरिटरी को छीन ले, वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज इट इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो सेकंड पार्ट जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड है आपके, कि स्टेट कैन बी डिस्ट्रॉयड। स्टेट की सैंक्टिटी सेक्रेड नहीं है। जैसे पहले बिहार हुआ करता था, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से झारखंड अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। अब बात हो रही है कि बोडोलैंड अलग दीजिए, गोरखालैंड दीजिए, हरित प्रदेश दीजिए, विदर्भ दीजिए, सौराष्ट्र दीजिए। तमाम पॉलिटिकल आर्टिकुलेशंस चल रहे हैं। समय के साथ देखने की बात होगी कि वो अपना स्टेट बना पाते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। अब आप रैशनाले पढ़ना चाहें तो you can go to Lakshmikant or any other stuff that will provide you clear-cut explanations. I will explain you very briefly that if you look at US model, there is huge power at a state level. Center is not having that much power as compared to India and Canada. Our model of federalism is more comparable to Canadian model of federalism and not US model of federalism. Why? Because if you look at the origin of Indian federalism, it was not a result of contract between different states. It was not that Bihar was having a full-blown identity of its own, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, and they were completely dissociated from each other. And in 1947, one fine day, they come together and create India. This is never going to happen. This never happened actually. But in case of United States of America, this actually happened when the independence war was being fought. Different independently existing states came together for security and military purpose. That if we are separate, we won't be possibly able to defend ourselves. So, okay, let's come together. Let us give some power to a centralized authority. Let us retain other powers to ourselves and then create a union. India के केस में ऐसा नहीं हुआ. It is other way around. There is a strong central government in which it is giving powers. Constitution is giving lesser powers to the state governments, right? इस हिसाब से आप सोच सकते हैं हमारे मॉडल ऑफ फेडरलिज्म और बाकी मॉडल ऑफ फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है. And after that, you can also have a look broadly at features of a normal federal government. That generally there are dual government. There is a national government and then there is a regional government. Always a written constitution is there because it is, as I said, a contract. Contract has to be written. नहीं तो कल के डेट में रीजनल गवर्नमेंट सेंटर की बात नहीं मानेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा, तो केओस हो जाएगा. सो टर्म एंड कंडीशन को स्ट्रेट रखने के लिए हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट. You can clearly visualize this in case of India, that we have a
state list, you have a union list, there is a concurrent list, then there are some residuary powers. So which arm of the government, which level of the government can legislate and execute on which subjects is very, very constitutionally clear, right? So there is no scope of conflict. Supremacy of the constitution. When we say supremacy of the constitution, it may appear very commonsensical to you, but there can be a situation in which supremacy is not that of constitution but of union government. To eliminate that possibility, sometime in future the union government can bulldoze and overpower the state government, we have a supreme constitution. Nobody can go beyond and work beyond a constitution. So this protects the identity of the states also. Now this constitution has to be rigid. Otherwise, the union government only has the amending power. You should keep this in mind. State government can never amend a constitution. So since amending power lies with the union government, and if amendment is procedure is made very easy, it can go on amending the constitution to the point that union government obliterates the very identity of the states. इसीलिए constitution को rigid बनाया गया है. Judiciary has to be independent so that it is in a position to mediate and resolve any conflict between states and the center. If the judiciary is controlled by union government, it will be of course biased. So in that case, judiciary का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. So students, as you see, very quickly I have explained to you logic behind having all these provisions. कोई भी provision जो फेडरलिज्म का हमने बनाया है वो ऐसे ही नहीं बना दिया है, उसका लॉजिक है और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है. अगर उससे हम छेड़खानी करते हैं तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारी डेमोक्रेसी को खतरा होगा, राइट? सो अब जब आप रिवाइज करें या जब भी आप मेंस के लिए प्रिपेयर करें तो थोड़ा सा पीछे जाकर प्रिपेयर करें कि जिस तरह का मॉडल हमने बनाया है देश में वो क्यों बनाया है और अदर मॉडल हम बनाते तो हमें क्या दिक्कत हो सकती थी. So I hope second question भी आप clear है. अब हम तीसरे question की तरफ move करते हैं. This question is about irrigation. Irrigation is very important topic for your preparation. As you know, both in prelims and mains, more and more questions are being asked on the broader domain of agriculture, right? कुछ और भी एग्जाम्स है नाबार्ड वगैरह के, वहां भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. सो इरिगेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए. So this question, students, is about advanced and newer technologies of irrigation, because as you know, our country is having differentiated kind of rainfall pattern. There are certain areas like northeastern areas or western ghats which have a lot of rainfall, right? First thing, there is a geographical variation in rainfall. For instance, there is a lot of peninsular India which does not get adequate rainfall, right? Secondly, you must also know that our rivers are also seasonal in nature in North India. Third, you must also know that rainfall is also not timely distributed across the year, but it's there only during some specific months called monsoon. इसीलिए हमें जरूरत है कि अगर हमें एग्रीकल्चर को ढंग से चलाना है तो हमें मैनेजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई करनी होगी. सो इरिगेशन एक तरीका है जहां ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू एक तो बारिश से इरिगेशन होती ही है, हम उस हिसाब से ट्यून इन कर ले कि जब बारिश होगी उस हिसाब से हम प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स करें ताकि हमारा नीड पूरा हो जाए. लेकिन हम साल के बाकी महीने खाली तो नहीं बैठ सकते. कुछ एरियाज में कभी बारिश नहीं होती, ऐसा भी नहीं कि उन एरियाज को हम छोड़ सकते. इसीलिए सिंचाई की जरूरत होती बेसिकली. अब आप एक चीज और देखेंगे, on the one hand we have requirement of irrigation, but on the other hand you have a water crisis. Across the globe you have a water crisis. Quality of water, quantity of water, availability, accessibility, हर चीज मुश्किल है, right? This is completely separate topic. I would suggest you कि आप down to earth के किसी भी आर्टिकल को खोल के पढ़ें. एक बहुत अच्छी मैगजीन है इन्वायरमेंट के ऊपर, उसकी वेबसाइट पर जाएं, आप इरिगेशन के बारे में, वाटर क्राइसिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, राइट? तो irrigation is important. Now, since water crisis is also there, it is important that we come up with advanced technologies wherein we increase the output from the minimum water. For instance, there has been a slogan by the government also, more crop per drop, that we use
whatever small amount of water is available to us in a more efficient manner, so that there is more productivity in agriculture, more enhancement in agriculture productivity per unit of irrigation that we give, right? So you must, for those who are from rural background, they must have seen that आप छोड़ देते हैं पाइप का पानी और वो जा रहा है, that is like a canal kind of irrigation. तो उस तरह के irrigation में क्या होता है, there is a lot of wastage of water. There is a lot of wastage of water. It leads to soil erosion. कभी कभी क्या होता है कि वो पानी बह करके आप अगर फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसको बहा करके ले जाता है तालाब में, नदियों में, राइट? सो इन दैट केस दैट वेस्टेज इज आल्सो देयर. ए लॉट ऑफ इवेपोरेशन से बहुत सारा पानी उड़ जाता है, तो वो भी वेस्टेज हुआ. तो तमाम तरह के वेस्टेज ऑब्जर्व किए जाते हैं, राइट? इस वेस्टेज को ही रोकने के लिए हम एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ इरिगेशन ला रहे हैं, जिस पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, राइट? तो पहला आप देखेंगे क्या है ऑप्शन, that micro irrigation is defined as the method in which low volume of water is applied at low pressure and high frequency, right? Second, sprinkler irrigation is also called trickle irrigation and involves dripping water onto the soil at very low rates from a system of small diameter plastic pipes fitted with outlets called emitters. Third is drip irrigation. Water is sprayed into the air and allowed to fall on the ground surface somewhat resembling rainfall. तो बेसिकली आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के बारे में बहुत मिनिमम पता होना चाहिए, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? स्प्रिंकलर इरिगेशन, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आप इस इमेज को देखें. दिस इमेज इज अबाउट स्प्रिंकलर इरिगेशन. इसमें क्या हो रहा है, a pipe is running parallel to the rows of planted crops and there are different exits. थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप देख रहे हैं कि एक नोजल जैसा निकला हुआ है जिससे पानी बाहर आ रहा है. नाउ दिस नोजल रोटेट्स, एक तरह का वहां मैकेनिज्म होता है जिससे वो रोटेट करता रहता है वाटर के फ्लो से, तो ये पानी घूमता रहता है और बहुत दूर में जाके गिरता है, एज यू कैन सी, एंड इट रिजेंबल्स सम काइंड ऑफ रेनफॉल. So this is sprinkler irrigation. दूसरा जो ये है आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड ऑफ स्लाइड में, दिस इज ड्रिप इरिगेशन. इसमें कोई हवा में पानी हमें नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जो रूट ऑफ प्लांट है उसके बगल से छोटी सी मोटाई की पाइप, स्मॉल डायमीटर पाइप जा रही है और जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकल के सीधे उसके रूट में जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन. अब आइए आप इसको पढ़िए. सो माइक्रो इरिगेशन के बारे में जो कहा जा रहा है वो तो सही है, थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर लो प्रेशर पे और हाई फ्रीक्वेंसी पे हम देते हैं. ये बेसिकली उल्टा दे दिया गया है. स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया दैट इज ऑपोजिट. जो ड्रिप इरिगेशन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो स्प्रिंकलर में दे दिया गया है, स्प्रिंकलर का जो एग्जांपल है वो ड्रिप में दे दिया गया है, यही अंतर है. सो 2 and 3 are not correct. If 2 and 3 are not correct, only 1 is correct, right? So as you can read from the explanation also, micro irrigation is defined as the method in which low volume of water is applied at low pressure and high frequency. ये keywords आप याद रखेंगे. This has an extensive network of pipes operated at low pressure. A predetermined spacing outlet are provided for emission waters, generally known as emitters. Sprinkler irrigation क्या है? Water is sprayed into the air and allowed to fall on the ground surface. The spray is developed by the flow of water under pressure through small orifices or nozzle. जो मैंने बताया वो घूमता रहता है और दूर में हवा में पानी फेंकता है. Drip irrigation is also called trickle irrigation. Involves dripping water onto the roots at very low rates from small diametric pipes. अब आप इस चीज को देखें तो एक और ऑब्जर्वेशन आप निकाल सकते हैं कि this arrangement for irrigation is relatively costly, right? इसमें आपको एक पाइप का इलेबोरेट नेटवर्क बैठाना है, फिर प्रेशर कंट्रोल करना है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि पानी का वेस्टेज कम होगा, आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स होगा, यूट्रोफिकेशन जो तालाब वगैरह में पानी चला जाता है वो कम होगा, ठीक है? किस क्रॉप को कितना वेरिएशन रखना है पानी का उसको आप बेहतर मॉनिटर कर सकते हैं. सो ये सारा फायदा है. सो इसीलिए इस तरह के एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारी स्कीम्स चल रही हैं.
इट इज एडवाइजेबल कि आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, क्या फंडिंग दी जा रही है, कौन सी स्कीम है, कौन स्टेट इसको अच्छे से फॉलो कर पा रहा है, तमाम तरह की चीजें हैं। इसके लिमिटेशन को ध्यान रखेंगे कि थोड़ा कॉस्टली होता है ये, और हर तरह के फार्मर्स के लिए जिनके पास बहुत कैपिटल नहीं है उनके लिए इसको अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होता है। So this is about third question, students. Final question for the day. It is on Indian economy. So consider the following statement. Industrial Policy 1948 suggested the setting up of a National Planning Commission for the first time post-independence, right? And second is the idea of economic planning gained currency in India after independence only. ये वाला statement जो है ये सही नहीं है. 2 is not correct. So आपको अब ये देखना है कि neither 1 और 2 और 1 and 2. So इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 में आई थी इसने कहा था कि नेशनल प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए. So answer for this question is A. Students, let me explain to you background about planning a bit so that you can understand कि क्या flow रहा होगा. In one of our sessions, I had also explained to you Keynesian economics. There I had explained to you that prior to Great Economic Depression in 90s, 1920s and 30s, the world was running according to the philosophy of laissez-faire, in which there was a free market economy which was preferred, which meant that state should not interfere much, there should not be much regulation on the economy, and economic forces of demand and supply will manage and come into an equilibrium with time. When you will read microeconomics and macroeconomics of class 11th of NCERT, especially macroeconomics textbook, you will learn about these things, right? But what happened during Great Depression, that economy was not coming on track with time on its own. Inflation भी बढ़ रहा था, लोग भी जॉब से बाहर थे, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया. सो जो एडवोकेट्स थे लेसेस फेयर इकोनॉमी के, ओपन मार्केट इकोनॉमी के, उनका जो एक कंट्रोल था इकोनॉमिक्स पे वो कम हुआ. एंड देन केम जॉन मेनार्ड केन्स, who was a British labor economist, जिन्होंने धीरे धीरे ये कहा कि इस परिस्थिति में हमें मैनेज करना पड़ेगा इकोनॉमी. उसके पहले इकोनॉमी को मैनेज करने का फिलॉसफी एक्सेप्टेबल नहीं था, राइट? दैट वाज कॉल्ड मर्केंटिलिज्म आल्सो. सो इन्होंने कहा कि वी नीड टू मैनेज द डिमांड साइड. डिमांड साइड मैनेजमेंट मैंने आपको डिटेल में समझाया था. क्या है डिमांड साइड मैनेजमेंट? कि लेट्स से आज इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है. ग्रोथ नहीं है इसका क्या मतलब? प्रोडक्शन कम है. प्रोडक्शन क्यों कम करना पड़ा? क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे हैं. लोग क्यों नहीं खरीद रहे होंगे? उनके पास पैसे नहीं होंगे. तो अब क्या होता है, ये साइकिल बन जाता है, विशियस साइकिल. इफ पीपल डोंट हैव इनकम, they won't go to purchase. If they don't purchase, production has to be cut. प्रोडक्शन कम करना है तो हमें लेबर फोर्स को फायर करना पड़ेगा जॉब से. लेबर फोर्स अगर फायर होगा जॉब से तो उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी. तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वही तो मार्केट में जाके कंज्यूमर बनता है, तो इसको निकालना मुश्किल हो जाता है. इससे कॉन्सेप्ट आता है डिमांड साइड मैनेजमेंट. डिमांड साइड मैनेजमेंट में केन्स ने क्या कहा, जिसको हमें केनेशियन इकोनॉमिक अप्रोच भी कहते हैं, कि सरकार क्या करेगी ऐसी स्थिति में कि इकोनॉमी में घुसाने की पैसा कोशिश करेगी, लोगों को टैक्स रिबेट देगी या सस्ते लोन देगी ताकि लोग जाएं मार्केट में खरीदारी करें, प्रोडक्शन बढ़े और इकोनॉमी शेप में आ जाए. सो यहाँ जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में देखा गया कि न्यू डील नाम की पॉलिसी लानी पड़ी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, सो धीरे धीरे ये एक्सेप्टेबल हो गया कि स्टेट एक रोल प्ले करेगा. उसके बाद 1917 में आप देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ. उसने पहली बार दुनिया में प्लांट इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, 5 ईयर प्लान्स अपनाए, और शुरुआत के दशक में वो बहुत बड़ा सक्सेस था, राइट? नेहरू वहां गए. नेहरू भी सोशलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन थे. उनका बहुत अट्रैक्शन रहा सोवियत प्लानिंग के थ्रू. 1930s में स्टूडेंट जब आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कम्युनिज्म और सोशलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी गेन्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन इंडिया, और वो लोग भी बिलीव करते थे कि देयर शुड बी प्लानिंग. तो धीरे धीरे आजादी की लड़ाई के प्रोसेस में ही हमने तय तमन्ना कर लिया था कि हम प्लान्ड इकोनॉमी बनने जाएंगे. सो धीरे धीरे जो चाहे वो कैपिटलिस्ट क्लास हो, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो जो भी क्लास हो, एक कंसेंसस बन चुका था कि हम प्लानिंग बनाएंगे. तो नेशनल प्लानिंग कमेटी तो 1938 में ही बन चुकी थी कांग्रेस के अंदर ही, कि प्लानिंग के वेयरअबाउट्स को स्टडी करना. सुभाष चंद्र बोस उसके चेयरपर्सन थे, और धीरे धीरे करके बाद में हम देखते हैं कि
इससे कहने का ये मतलब है कि प्लानिंग का जो आइडिया था वो पोस्ट इंडिपेंडेंस आइडिया नहीं था, वो हमेशा से रहा। 1920 के बाद प्लानिंग पर चर्चा होती रही थी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, इंडिया में भी। प्रॉपर प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू 1950s में बना, उसने अपना काम किया, 5 ईयर प्लान्स बनाए। 2014 में फाइनली उसको डिसमेंटल कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग आ गया। So I think this broader history of planning in India should be clear to you. Student, this is it from my side. I hope आपको मजा आया होगा। मजा इन द सेंस कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम ऑप्शन से डील कैसे करते हैं। क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है, then how do we engage with it? How do we crack it? आप बार बार इस वीडियो को देखिए स्टूडेंट्स, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है अगर अच्छा है तो उनसे शेयर करें। डाउट्स पूछने के लिए हमारे पास कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। थैंक यू सो मच।